عام عوام پر صحت سہولیات کے دروازے بند 1 جولائی سے سرکاری اسپتالوں میں پرائیویٹ اسپتالوں میں صحت کارڈ پر 50% بل دینا ہوگا۔ صحت کارڈ پر مفت علاج کی مد میں فنڈز بھی کم کر دیے گئے۔ سرکاری اسپتالوں کو 30 جون کے بعد صحت کارڈ کے زیر التواء کلیم نہیں ملیں گے، صرف وزیر اعلیٰ کے اسپیشل انیشیٹوز پر علاج ہوا کرے گا۔ اب مریض سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر مفت علاج نہیں کروا سکیں گے۔ پنجاب حکومت نے سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ پر علاج بند کر دیا۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی نے تمام سرکاری ہسپتالوں کو مراسلہ لکھ دیا۔ پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سرکاری ہسپتال صحت کارڈ پر زیر التواء کلیم 30 جون تک جمع کروائیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں صرف وزیر اعلیٰ کے اسپیشل انیشیٹوز پر علاج رہے گا۔ سرکاری ہسپتالوں کو صحت کارڈ پر علاج بند ہونے سے شدید مالی نقصان کا خدشہ ہے۔ پرائیویٹ ہسپتالوں میں 50% بل خود ادا کرنے پر ہی صحت کارڈ پر علاج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال میں صحت کارڈ پر مفت علاج کی مد میں فنڈز بھی کم کر دیے گئے۔ کوئی اشتہار نہ انٹرویو 14 پروفیسرز کی من پسند تعیناتیاں۔ پروفیسر فاروق افضل پرنسپل PGMI جنرل اسپتال تعینات، پروفیسر طیبہ وسیم پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج تعینات، پروفیسر ہارون حامد چیف ایگزیکٹو آفیسر نیو اسپتال مقرر کر دی گئی۔ پروفیسر سائرہ افضل ڈین IPH کا عہدہ سنبھالیں گی۔ پروفیسر جنید رشید مستقل بنیادوں پر ڈین چلڈرن اسپتال تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر رحمان گلزار، پروفیسر عبدالحمید کو بھی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے قواعد اور ضوابط کے برعکس پرنسپل اور میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے سربراہ تعینات کر دیے۔ 14 پروفیسرز کے تقرر و تبادلے ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بغیر تشہیر مبینہ طور پر من پسند پروفیسرز کے انٹرویوز کر کے پوسٹنگ کی گئی۔ پروفیسر ہارون حامد کو چیف ایگزیکٹو آفیسر میو ہسپتال تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر سائرہ افضل ڈین IPH اور پروفیسر جنید رشید مستقل بنیادوں پر ڈین چلڈرن ہسپتال تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر محمد اختر کو پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر بلال سعید کو پرنسپل DG خان میڈیکل کالج، پروفیسر افتخار پارس شاہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر DG خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر رحمان گلزار پرنسپل نواز شریف میڈیکل کالج گجرات، پروفیسر عبدالحمید پرنسپل فاطمہ جناح میڈیکل کالج تعینات کر دیے گئے۔ پروفیسر اعجاز حسین شاہ کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاک اٹالین برن سینٹر ملتان تعینات کر دیا گیا۔ پروفیسر نبیلہ ریاض پرنسپل ڈی مونٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری تعینات کر دی گئیں۔ پروفیسر ارمغان اسرار مرزا ڈین فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری اور پروفیسر زبیر حسن اویسی کو مستقل بنیادوں پر پرنسپل نشتر انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹسٹری تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 اراکین معطل۔ علی امتیاز بڑاچ، اعجاز شفیق، خال کاسرو، سائمہ کنول، ملک فہد، تنویر اسلم، رفعت محمود، کلیم اللہ شامل ہیں۔ 15 روز کے لیے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد۔ اسپیکر نے 10 اراکین کو 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ ملک محمد احمد خان کا معطل۔ اراکین کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس بھیجنے کا اعلان۔ کہا سسٹم کو یرغمال بنانے نہیں دیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ پر اسپیکر کا سخت ایکشن۔ ایوان میں ہنگامہ آرائی پر اپوزیشن کے 26 ارکان معطل۔ 15 روز کے لیے پنجاب اسمبلی میں داخلے پر پابندی بھی عائد کر دی گئی۔ 10 ارکان اسمبلی پر اجلاس کے دوران ڈیسکوں پر چڑھ کر مائک توڑنے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سخت مالی جرمانہ عائد۔ ہر رکن پر 2,03,550 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ 7 روز کے اندر ادائیگی نہ کی گئی تو قانونی کارروائی ہوگی۔ چودھری جاوید کوثر، اسد عباس، محمد تنویر اسلم، سید رفعت محمود کو جرمانہ بھرنا ہوگا۔ محمد اسماعیل، شہباز احمد، امتیاز محمود، خالد جبیر نثار، رانا اورنگزیب اور محمد احسن علی کا نام بھی جرمانہ ادا کرنے والوں کی فہرست میں آ گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان اور سیکرٹری جنرل چودھری عامر حبیب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ملک محمد احمد خان نے کہا کہ ایوان کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے۔ احتجاج کے نام پر گالی دینا اور گریبان پکڑنا کسی کا اختیار نہیں۔ 26 معطل اراکین کا ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجیں گے۔ یہ ایسے کیسے چلتے ہیں؟ یہ کس طرح سے یہ احتجاج ہو سکتے ہیں؟ اس ہاؤس کو اس آئین کے مطابق چلنا ہے، اور میں اپنا یہ مقدمہ آج سے I am getting on record for this۔ کسی کو گالی دینا کسی کا حق نہیں ہے۔ میں وہ فلور آپ کے حوالے کر دوں کہ آپ کا جب دل کرے آپ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے ہاتھوں میں موٹی موٹی ذہین کتابیں اٹھائیں اور آپ خواتین کی طرف مارنی شروع کر دیں۔
स्पीकर की जानिब से मुअत्तल किए गए अरकान में मलिक फहद महमूद, मलिक तनवीर असलम शामिल हैं। सैयद रिफत महमूद, यासिर महमूद कुरैशी, कलीमुल्लाह खान, अली आसिफ, जुल्फिकार अली, अहमद मुज्तबा चौधरी, शाहिद जावेद, मोहम्मद इस्माइल मुअत्तल हुए। ख्याल अहमद कास्त्रो, राना शहबाज अहमद, तैयब राशिद, इम्तियाज अहमद, अली इम्तियाज बड़ाइच, मोहम्मद नईम, राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल, राशिद तुफैल, चौधरी इजाज शफी, खालिद जुबैर निसार, साइमा कंवल, राना औरंगजेब, सज्जाद अहमद, उसामा असगर गुज्जर और शुएब अमीर मुअत्तल होने वाले अरकान में शामिल हैं। अब यहाँ पर बात करें, मुहर्रम शुरू होते ही मुर्गी का गोश्त मजीद महंगा हो गया। ब्रायलर गोश्त 14 रुपये किलो महंगा हो गया। सरकारी कीमत 417 रुपये किलो मुकर्रर की गई। मार्केट में गोश्त 440 रुपये तक किलो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि ब्रायलर जिंदा परचून में 288 रुपये किलो मुकर्रर है। ब्रायलर मुर्गी की मांग में इजाफा, कीमत रोज बरोज बढ़ने लगी। शहर में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपए फी किलो महंगा हो गया। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 417 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों जीटी रोड मनावा, जल्लो के इलाके बाटापुर, शाहदरा जीटी रोड के अतराफ आबादियों, बंद रोड गुलशन रावी, ठोकर न्याज बेग और चूंक समेत दीगर इलाकों में ब्रायलर गोश्त 440 रुपए तक भी फरोख्त किया जाता रहा। दूसरी जानिब गिरा फरोशों ने सब्ज मसाला जात की कीमतों में 10 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया। आलू की सरकारी कीमत 70 रुपए मुकर्रर है, मगर बाजार में 90 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज सरकारी कीमत 40 की बजाय 60 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपए है, जबकि बाजार में 70 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन देसी का सरकारी निर्ख 210 रुपए है, जबकि ओपन मार्केट में 250 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। फल भी शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। आम दुसहरी 190 की बजाय 250 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। सेब सरकारी कीमत 405 की बजाय 450 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। अब यहाँ पर बात की जाए मौसम की, तो प्री मानसून का तीसरा स्पेल। केनाल रोड, गुलबर्ग और निस्तर पार्क में बारिश। पीर बहार शाह रोड और ज़रार शहीद रोड पर पानी में डूबे रहे। छोटे बच्चे बारिशी पानी में नहाते रहे। उधर जोहर टाउन ए ब्लॉक पार्क में बारिश का पानी जमा, इलाके में ताफून और मच्छरों की बहुतात के खदशात। प्री मानसून का तीसरा स्पेल। केनाल रोड, गुलबर्ग और निश्तर पार्क के इलाके में हल्की बारिश हुई। शहर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान 10% बारिश का इम्कान है। प्री मानसून सिस्टम 30 जून को लाहौर से इख्तिताम पजीर हो जाएगा। चंद मिनट की बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कैंट के इलाके ज़रार शहीद रोड और पीर बहार शाह रोड फुटपाथ के लेवल पर पानी जमा हो गया। शहरियों की सवारियां बारिशी पानी के बाइस बंद होती रहीं। वासा इंतजामिया पानी की निकासी को यकीनी बनाने में नाकाम रही। शहरी कहते हैं, निकासी ना होने से निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। बाइक बंद हो गई है, पानी इतना ज्यादा है कि बाइक बिल्कुल बंद हो जा रही है। अब घर वही सोच रहे किस तरह जाए, पानी जब थोड़ा रुकेगा तो फिर ही वापसी होगी। अब जोहर टाउन ए ब्लॉक पार्क में बारिश का पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं, जब बारिश होती है पानी इकट्ठा हो जाता है। वासा इंतजामिया को कई दफा शिकायत कर चुके हैं, मगर मसला हल नहीं हो रहा। हमारी अपील है कि पानी की निकासी का निजाम दुरुस्त किया जाए। पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग और असेसमेंट अथॉरिटी की गाफिलत। अथॉरिटी की जानिब से फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री बुक में लाहौर के शाही किला के बजाय लाल किला दिल्ली की तस्वीर शाया कर दी गई। निसाबी किताब में गलत तस्वीर लगने का नोटिस। करिकुलम के जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान, बताइएगा। जी, पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की केमिस्ट्री बुक में लाहौर के किला की बजाय लाल किला दिल्ली की तस्वीर शाया कर दी गई है और निसाबी किताब में गलत तस्वीर लगने का नोटिस जो है वो वजीर तालीम और CEO पैक्टा डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम की जानिब से ले लिया गया है और करिकुलम विंग के जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ तहकीकात का कर दिया गया है। CEO पैक्टा डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम इंक्वायरी के बाद मुरतब होने वाली रिपोर्ट की रोशनी में गलत के मुर्तकिब जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, जिम्मेदारान के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर बात करें, पेप स्कूलों के असातिज़ा गर्मी की छुट्टियों में तनख्वाहों से महरूम, जबकि बेशतर असातिज़ा को सरकारी तौर पर मुख्तस की गई तनख्वाह से भी कम मुआवजा दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पेप पार्टनर को बजरिया बैंक या ऑनलाइन तनख्वाह ट्रांसफर करने का हुक्म दे दिया है।
एफ पार्टनर स्कूलों में पढ़ाने वाले बेशतर असासा गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाहों से महरूम। सैकड़ों असासा को सरकारी तौर पर मुख्तस की गई तनख्वाह से भी कम मुआवजा दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। पंजाब भर में 7200 पेफ पार्टनर स्कूलों में 1.25 लाख असासा पढ़ाते हैं। सरकारी तौर पर असासा की माहाना तनख्वाह 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। जराये के मुताबिक माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने के बावजूद सैकड़ों असासा को माहाना 8 से 10,000 रुपए मुआवजा अदा किया जा रहा है। पार्टनर स्कूलों के असासा गर्मी की छुट्टियों की तनख्वाह न मिलने पर सरापा एहतजाज है। महकमे स्कूल एजुकेशन ने कम उजरत मिलने की शिकायत का नोटिस लेते हुए पार्टनर्स को बजरिया बैंक या ऑनलाइन तनख्वाह ट्रांसफर करने का हुक्म दे दिया है। सिटी ऑफ लाहौर के एक्साइज को ई चलान की वसूली पर डीजी एक्साइज का बड़ा मुतालबा। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर ई चलान की वसूली करवानी है तो एक्साइज की डिफाल्टर गाड़ियों से टोकन वसूली के लिए ट्रैफिक पुलिस को मदद करना होगी। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर पर ई चलान की वसूली करवानी है तो एक्साइज की डिफॉल्टर गाड़ियों से टोकन वसूली के लिए ट्रैफिक पुलिस को मदद करना होगी। डीजी एक्साइज उमर शेख चट्टा ने सिटी ऑफ लाहौर को जवाबी मुरासला लिख दिया। डीजी एक्साइज की जानिब से सिटी ऑफ लाहौर के मुरासले के जवाब में कहा गया है कि महकमे एक्साइज पहले भी सेफ सिटीज अथॉरिटी को आगाह कर चुका है कि वार्डन ऐप में टोकन टैक्स को चेक करने का सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करें। पंजाब भर में 15 लाख के करीब गाड़ी मालिकान सालाना टोकन टैक्स अदा करते हैं। माली साल के इख्तिताम पर एक्साइज की नाकाबंदी के बावजूद लाखों गाड़ी मालिकान टोकन टैक्स अदा नहीं करते। वार्डन्स चूंकि तमाम सड़कों पर मौजूद होते हैं और गाड़ियां एक्साइज की निस्बत ज्यादा मौसर चेक कर रहे होते हैं। मुरासले में कहा गया है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए दोनों इदारों को आपस में ताउन करना चाहिए। वार्डन्स की चेकिंग से टोकन टैक्स वसूली में बड़ा इजाफा मुमकिन है। अब यहाँ पर बात करें जल्लो से 6 से 7 किलोमीटर की मुसाफत पर नवा पिंड के इलाके में पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज़ दौर के निज़ाम आपाशी की अबतर सूरत हाल अपनी कहानी खुद बयां करती हैं। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंग्रेजों ने जब बरे सगीर में कदम जमाए तो पंजाब अंग्रेजों के लिए शुरू से ही अहमियत का हामिल रहा। पंजाब की जरखेज जमीन अंग्रेजों को खूब भाती थी। शोबा ज़राअत को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए अंग्रेज ने जहां नहरी निज़ाम को बेहतर किया, वहीं पर ट्यूबवेल सिस्टम को पंजाब भर में मुतारिफ कराया गया। पंजाब के देहातों की जीनत बनने वाले ट्यूबवेल देहाती लोगों की यादों का मुस्तकिल हिस्सा बन गए। 1950 से भी पहले की शायद हो इधर से हम जब से देख रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा ये सारा ये जो चलता था ना, ये सारा ट्यूबवेल चलता था, हम इधर नहाते रहे हैं। जैसे जैसे ये गवर्नमेंटें आती रही हैं, बाद में ये सारा कुछ खत्म हो गया। ट्यूबवेल के लिए कायम सरकारी इमारतें आज खंडर बन चुकी हैं, मगर मकामी देहाती आबाओ अजदाद के किस्सों को सीनों में महफूज रखते हैं। जब ट्यूबवेल था तकरीबन 4-5 गाँव है इधर जहाँ पे ये पानी जाता था। अभी ये तकरीबन 3-4 गाँव है जहाँ पे ये पानी जा रहा है। टरबाइन थी, काफ़ी बड़ी थी, इसकी तकरीबन 50 हार्स पावर की मोटर की उसके ऊपर लगी हुई थी, वो खासा पानी निकालती थी। अगरचे आज अंग्रेज दौर का निजाम जदीद दौर से बदल गया है, लेकिन इसकी बाकियात उस दौर का बेहतरीन नक्शा खींचती नजर आती हैं। कैमरामैन सज्जाद हुसैन के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। सूबाई वुज़रा और अफसरान का ठोकर नियाज बेग पांडो स्ट्रीट और निसार हवेली का दौरा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और इंतजामिया अमूर का जायजा लिया गया। वुज़रा और अफसरान ने रूट्स पर सिक्योरिटी के इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। डीसी लाहौर जैद बिन मकसूद, CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना भी हमरा थे। मुआवने खसूसी वज़ीर आला पंजाब सानिया आशिक, आगा हुसैन कजलबाश भी वफ्द के हमरा थे। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम बताएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ मोची गेट पे। जिस तरह के निसार हवेली से मरकजी जुलूस जो है योम आशूरा के दिन जो है वो मरकजी जुलूस जो है वो निकलता है और करबला गामे शाह तक जो है वो जाता है। उसके तमाम तर इंतजाम देखने के लिए बिलाल यासीन बजाते खुद जो है वो यहाँ पर आए हैं। वजीर हाउसिंग हैं, उनके साथ साथ जो है वो DIG ऑपरेशन लाहौर, CCPO लाहौर, DC लाहौर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा थे। जैसे मुझे बताइएगा कि दौरा किस तरह रहा आपका? माशाल्लाह निकले हैं सख्त गर्मी के मौसम में, आगा साहब भी निकले हैं, आप भी निकले हैं, कैसा रहा ओवरऑल रूट्स और कैसा आपको इंतजामिया के बारे में कहना चाहेंगे? जो चीज़ें सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ ने जो पिछले साल अरेंजमेंट्स किए थे, हमारे पास टास्क ये है कि उससे बेहतर अरेंजमेंट्स करें। उस सिलसिले में हमने लाहौर के तमाम, लाहौर डिवीजन की बात करूँ तो कसूर, ननकाना, शेखुपुरा और आज लाहौर डिस्ट्रिक्ट, तमाम जितने भी यहाँ पे हॉट स्पॉट्स थे उनको विजिट किया। हमने स्टार्ट लिया था नियाज बेग से, वहाँ पे ठोकर नियाज बेग, वहाँ पे जहाँ पे प्रोसेशंस होते हैं मेन,
वहाँ पे विजिट किया, फिर इस्लामपुरा में पांडु स्ट्रीट के विजिट्स किए, अब हम निसार हवेली में मौजूद हैं और आगा साहब हमेशा आपको पता हमें होस्ट करते हैं। जितने भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे कंसर्न थे अल्हम्दुलिल्लाह वो एड्रेस हो चुके हैं। मुझे बताएं आगा साहब कि अमन उमरान के बारे में बिलाल भाई ने और हुकूमत पंजाब ने बड़ा काम किया है, अमन कमेटी से भी लोग आए हैं, मुफ्ती उलमा कराम की भी आपसे मुलाकातें हुई हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने मेंबर से अमन का पैगाम दें, सुन्नी शिया भाई बंदी का, रवादारी का मतलब बयान दें आप कि हमारे करीब आए, हमारे से दूर ना जाएं, आपकी जबान से अंगारे ना निकले, आपके फूल निकले, जिससे सुन्नी शिया भाई आज भी हैं, कल भी हैं और हमेशा हम एक रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त की जरूरत है। आगा साहब का बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई का बहुत शुक्रिया। आगा साहब हमारे साथ है। यही तमाम तर जो सूरत हाल है वो अंदरून लाहौर की, मोची गेट की, पांडु स्ट्रीट की, इस्लामपुरा की बात कर लें, ठोकर न्याज की कर लें, सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो यूं ही जारी हैं, यूं ही जो है वो इंतजामिया मुतहरिक है। अब जो है वो योम आशूर के दिन के हवाले से जो है वो तमाम इंतजामिया का ये कहना है मुकम्मल कर ली गए और मजीद जो उसके साथ पेशरफ्त होती रहेगी वक्त के साथ साथ। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ, ATOs की सरबराही में वसूलियाँ और सरबमोहरी का अमल जारी। 5 करोड़ से ज़ायद की 153 प्रॉपर्टीज़ को सरबमोहर कर दिया गया। एक रोज़ में 3 करोड़ से ज़ायद की वसूलियाँ की गईं। शहर में प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी हैं। 5 करोड़ से जायद की 153 प्रॉपर्टीज को सरबा मोहर कर दिया गया। एक रोज में 3 करोड़ से जायद की वसूलियां की गई। मॉल रोड पर मॉल प्लाजा में 35 लाख का नादहिंदा होटल और दुकानें सरबा मोहर कर दी गई। अपर मॉल रोड पर मॉल प्लाजा में 35 लाख का नादहिंदा होटल और दुकानें सरबा मोहर कर दी गई। टीमों ने इचरा मॉल रोड पर 1.5 करोड़ से जायद की नादहिंदा 83 प्रॉपर्टी सरबा मोहर की। जौहर टाउन, फैसल टाउन, मुस्लिम टाउन के इलाकों में करोड़ से जायद की नादहिंदा 77 प्रॉपर्टीज को सरबा मोहर कर दिया है। गुज़श्ता रोज डिफॉल्टर से 3 करोड़ से जायद की वसूली की गई। अब तक शहर में टैक्स की अदायगी के बगैर खुद डीसील करने वालों के खिलाफ 12 मुकदमा दर्ज करवाए जा चुके हैं। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के हर जाने का केस अदालत ने आइंदा समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर लिया। अदालत ने मजीद समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी। सेशन जज यलमाज गनी ने हरजाना केस की समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मसरूफियत के बायस आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं हुए। बानी PTI के वकील ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान पर जरह के दौरान कानूनी नोटिस और रसीदें पेश न करने का एतराज आयद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बानी PTI को भिजवाया गया लीगल नोटिस और रसीदें जमा करवा दी गयी। बानी PTI के वकील मोहम्मद हुसैन चूटिया ने एतराजात पर मबनी अपना जवाब भी अदालत जमा करवा दिया, जिसमें कहा गया कि वज़ीर आज़म ने दावा दायर करने से कबल बानी PTI को कोई कानूनी नोटिस नहीं भिजवाया। बानी PTI के वकील ने कहा कि कानूनी नोटिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दस्तखत मौजूद न होने पर दावा गैर मौसर है, लिहाजा इनके लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा न बनाया जाए। अदालत ने समाअत 3 जुलाई तक मुलतवी कर दी और वकला को आइंदा समाअत पर बहस के लिए तलब कर लिया। पंजाब असेंबली में सानिया सवात की गूंज। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफी होने के मुतालबे की करारदाद मंजूर। स्पीकर अली अहमद खान की गैर पार्लिमानी एहतजाज पर सार्जेंट 8 आर्म्स बुलवाकर ऐवान से बाहर निकालने की वार्निंग। ऐवान में अपोजिशन की खामोश एंट्री और फिर वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान अपोजिशन पर खूब गरजे बरसे, बोले एहतजाज के नाम पर किसी को हुल्लड़बाजी की इजाजत नहीं दे सकता। जो मैंने ये ऑर्डर पास किया है उसकी लिटरली द सोलम रीजन फॉर दैट इज कि जो इस हाउस का ऑर्डर डिसरप्ट हुआ है। ऑपोजिशन अरकान खामोशी से ऐवान में आए, बगैर किसी शोर शराबे के वॉकआउट कर गए। सूबाई वज़रा ने भी ऑपोजिशन पर भड़ास निकाली, कहा जब भी कायदे ऐवान आती हैं ऑपोजिशन की जानिब से गालम गलोच होती है। लीमाबाजी खुद भी कहना शुरू हो गई है कि खान माइनस हो गए। जब खान ही माइनस हो जाएगा तो इनमें से तो आधे लोग भी नहीं यहाँ पे इस असेंबली में आ सकेंगे। आपके मुंह पर लफ्ज़ चढ़ा हुआ चोर डाकू, जिसको दिल चाहता है चोर डाकू कह ले, तो चोर डाकू वो है जो डियाला में 190 मिलियन पाउंड खा के बैठा है। इजलास में पंजाब के ज़िमनी बजट पर हुकूमती अरकान ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को खूब सराहा। अपने अपने हलकों में मजीद तरक्याती कामों के लिए तजावीज़ पेश की। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42।
वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फ्राहम करने की हिदायत जारी कर दी। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत जारी की। पहले मरहले में आने वाली 240 ई बसें निस्बतन पसमानदा अजला को फ्राहम कर दी जाएंगी। लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 ई बसों की फ्राहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी। नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में 600 इलेक्ट्रिक बसें मजीद आएंगी। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की सूबाई स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने सदारत की। वज़ीर आला के मुआवने ख़ुसूसी ज़िशान मलिक, स्पेशल सेक्रेटरी अरशद बेग और पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के MD सैयद जाहिद अजीज़ ने भी शिरकत की। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली की हिकमत अमली पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर ने PMDFC को ज़रूरी हिदायत जारी की। कमेटी ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम की निगरानी के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और रीजनल अफसरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि प्रोग्राम के मुताबिक हर शहर में मरहलावार सीवरेज और ड्रेन सिस्टम तामीर किया जाएगा। बरसाती पानी के निकास के साथ सीवरेज का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। उन्होंने हिदायत की कि पार्कों और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर बल्दियात ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर अपने अजला के शहरों में स्कीमों की तकमील के ज़िम्मेदार होंगे। मनसूबों की शफाफियत और मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में 17वां सेनेट इजलास हुआ। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इंतजामी अमूर की मंजूरी दी गई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेनेट इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शेहराम सरवर चौधरी, वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज ने शिरकत की। वाइस चांसलर फातिमा जिनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ज़िशान शबीर राना शरीक हुए। एडिशनल सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन सिद्रा सलीम, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर मोहम्मद इमरान, प्रोफेसर मोहम्मद मोइन ने भी शिरकत की। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से इस्मत ताहिरा, फैकल्टी मेंबरान और मलिका टीचिंग अस्पतालों के MS साहिबान शरीक हुए। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। सेनेट इजलास के दौरान टीचिंग और नॉन टीचिंग मुलाजमिन के रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी गई है। इजलास के दौरान किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी के लिए सेनेट मेंबर की तैनाती की मंजूरी भी दी गई है। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह के ओहदा संभालने के बाद पहली खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। पूरी स्कीमों और जाली हाउसिंग सोसाइटीज और अर्रहमान गार्डन फेज़ 4 के मुतासरीन ने शिरकत की। ख़ियाबान अमीन हाउसिंग, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग, पाक अरब हाउसिंग, ओमेगा हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने भी शिरकत की। DG नैब लाहौर ने मुतासरीन को सुना और मौके पर ही दादरसी के अहकाम जारी किए। DG नैब ने कहा ख़ियाबान अमीन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल के मरकज़ी मुलजिम अल्लाह दीता हीरा के 50% से ज़्यादा अदागी के मुतासरीन को 3 गुना रिकवरी करवा रहे हैं। DG नैब लाहौर ने ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन की जानिब से रिकवरी में ताख़ीर की शिकायत पर सोमवार को मुल्जिमान की जायदादें फ़रोख्त करने के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग तलब कर ली है। मुहर्रम और हराम का आगाज होते ही लाहौर समेत मुल्क भर में आज़ादारी का सिलसिला जारी है। अकीदतमंदों की जानिब से जगह जगह पानी और मशरूबात की सबीलों और न्याज का एहतमाम किया जा रहा है। मुहर्रम उल हराम गमे हुसैन अलैहिस्सलाम का महीना, जहां अकीदत, एहतराम और खिदमत एक साथ नजर आते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अकीदतमंदों ने इज़ादारों और ज़ायरीन के लिए सबीलों का खुसूसी एहतमाम किया है। बहुत सख्ती गर्मी है, सबीले लगाते हैं, पानी जगह जगह पे मिल रहा है, ठंडा दूध भी है, पानी भी है और भी सब कुछ ऐरा वगैरह। बीबी पाक दामन के मज़ार पर ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान अज़ादारी में शिरकत के लिए आ रहे हैं। अकीदत के तहत सबीलें भी लगाई गई हैं। ये सबील करबला के प्यासों की याद में पिलाई जाती है। काफ़ी सदियों से ये रस्म चलती आ रही है और ये सबील की जो रस्म है ये ता दमे क़यामत आबाद रहेगी। कहीं ठंडे शरबत की सबील है तो हर कहीं पानी की न्याज भी तकसीम की जा रही है। ये सबीलें सिर्फ प्यास बुझाने का जरिया नहीं बल्कि मोहब्बत अहले बैत की अमली तस्वीर भी पेश करती हैं। ये मौला हुसैन के नाम पे सबील लगाई जाती है। दूर दूर से लोग आते हैं बीबी पाक दामन और यहाँ आके क्या कहते हैं मजलिस सुनते हैं। उनकी याद में सबीलों का एहतमाम है। ठंडे पानी पिलाए जा रहे हैं, शरबत पिलाए जा रहे हैं, लंगर तकसीम हो रहे हैं। सबीलें ना सिर्फ अज़ादारों के लिए सुकून का जरिया है बल्कि करबला में प्यासे शोहदा की याद भी ताज़ा कर देती हैं। कैमरामैन खुरम के हमरा फातिमा खान, सिटी 42।
एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम स्पोर्ट्स मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना के स्कूलों के असातिज़ा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के ज़ेर-ए-तमाम स्पोर्ट्स मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले असातिज़ा के एजाज़ में तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में CEO एजुकेशन लाहौर नज़ीर हुसैन चीना और DEO सेक्रेटरी मोहम्मद आरिफ ने ख़ुसूसी शिरकत की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च टूल के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड, मिनिस्ट्री फॉर यूथ अफेयर्स और कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज ने इत्तमाम किया। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले सेमिनार के मेहमान खुसूसी डॉक्टर फरीदुल जफर और प्रिंसिपल कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आयशा शौकत थीं। सेमिनार के मुकर्रर गुलाम फरीद ने बताया कि हमारे यहाँ AI के सही इस्तेमाल बारे लोगों को आगाही नहीं। ऐसे सेमिनार बहुत अहम हैं। AI बेसिक जो पाकिस्तान में है या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज में है, उसका थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को या स्टूडेंट्स को उसका जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। इसी तरीके से हमने एक स्टडी कंडक्ट की। स्टडी में ये हुआ कि जो आपका AI जो पेड वर्जन है 4.5 या 4.0 चैट GPT है, उसके रिस्पांस या एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्री। सेमिनार में तलबा ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। तलबा का कहना था कि ऐसे सेमिनार दौरे जदीद में रिसर्च के हवाले से अहम हैं। लोगों का रिसर्च कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्योंकि अब AI का दौर आ गया है, तो AI की वजह से कौन कौन से टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके रिसर्च इतनी आसान कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल था उस लिहाज से। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स जो इसको अवेल करें, ना सिर्फ मेडिकल लाइफ में, उसके अलावा भी जो भी करिकुलम में जितने भी PhD टीचर्स और जो थीसिस लिख रहे हैं उन सब के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस लेक्चर की, इस सेमिनार की मदद से डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट तौर तरीके समझें। सेमिनार की ऑर्गेनाइजर और मेहमान खुसूसी डॉक्टर आयशा शौकत और डॉक्टर फरीदुल जफर का कहना था उनके लिए आज बड़ा दिन है। उन्होंने बतौर चेयरमैन कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज का चार्ज लिया और अब तरक्की का राज ही AI में महारत हासिल करना है। ये हमें पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साथ ही लिंक्ड है, और सिर्फ उन्हीं मुल्कों ने तरक्की की और सुपर पावर्स में आ रहे हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी हर किस्म की मौजूद है। इस वक्त जो हमारा फोकस है वो हमारी यूथ पर है, और डायरेक्टरेट ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के साथ कॉन्टिनेंटल मेडिकल कॉलेज कोलैबोरेट कर रहा है एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर, और वो है रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया में सोच के धारों को बदल दिया है, लेकिन आज भी ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी पर हावी है। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ आमिर रजा खान, सिटी 42। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें जिद्दत के लिए हमेशा जगह रही है। बड़े बड़े क्लब्स और अकेडमीज में इलेक्ट्रॉनिक बॉलिंग मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जबकि छोटे क्लब रोबो आर्म इस्तेमाल करते हैं। रोबो आर्म कैसे काम करता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुदरत जब कोई चीज़ आपके पास कम होती है तो उसके लिए कोई ना कोई वसीला ज़रूर पैदा कर देती है, और आज ऐसा ही एक रोबो आर्म मैंने देखा जो कि तेज़ बॉल कराता है बैट्समैन को, और बैट्समैन की प्रैक्टिस कराता है कि उसने फास्ट बॉलर को कैसे खेलना है, और इसका कंट्रोल जो बॉलर करता है वो कैसे करता है। आपको इस तरह से बॉल निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन पहले आप देखें कि बॉलर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। रोबो आर्म एक जुगाड़ है जिसने बॉलिंग मशीन जैसी महंगी मशीन की जगह ले ली है। इस मैनुअल हाथ ने बॉलर्स और बैटर्स दोनों की मुश्किल आसान कर दी है। इस मसनूई हाथ जैसी डिवाइस के साथ जोर लगाए बगैर बॉलर अपने मतलूबा हदफ तक तेज गेंद फेंकता है, और बल्लेबाज तेज गेंदों का सामना करते हुए सब कुछ सीख जाता है। खिलाड़ियों का कहना है कि इस डिवाइस के बनने से उनकी मुश्किल आसान हो गई है। जिस तरह क्रिकेट एडवांस हो गई है, आपको मॉडर्न डे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आजकल क्लब लेवल पे इतने कोई तेज़ बॉलर्स नहीं होते हैं, लेकिन जब आप किसी अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, आप फर्स्ट क्लास लेवल पे जाते हैं, रीजनल लेवल पे जाते हैं, तो वो आपको अच्छी पेस के साथ बॉलर्स खेलने को मिलते हैं। उसी की ये प्रैक्टिस होती है रोबो आर्म के जरिए जो हम करते हैं, ताकि हम उस पेस को मैच कर सकते हैं जो एक अच्छे बॉलर की होती है। तो बहुत फ़ायदा है। जिस तरह हम अभी क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, जब हम यहाँ से परफॉर्म करके आगे जाएंगे अच्छी क्रिकेट में फर्स्ट क्लास लेवल में, तो उधर बॉलर तेज होते हैं, जिसकी वजह से रोबो आर्म हमें तैयार करती है। रोबो आर्म बॉलिंग मशीन का मुतबादल तो नहीं हो सकता, लेकिन इसकी इजाजत से लाखों की बॉलिंग मशीन का काम चंद सौ रुपए में हो रहा है, और महंगे क्लब्स जैसी प्रैक्टिस कम पैसों में की जा रही है। आपने प्लेयर्स की बात भी सुनी, और अब ये भी देखें कि इस रोबो आर्म के अंदर
इसकी स्पीड को बढ़ाया और कम भी किया जा सकता है। यानी वो तमाम सिस्टम जो एक बॉलिंग मशीन के अंदर मौजूद होते हैं इस रोबो आर्म में भी मौजूद हैं। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ आमिर रज़ा खान, सिटी 42। अब यहाँ पर बात करें गर्मी की शिद्दत में खुनकी का एहसास दिलाने वाला फल, और वो है लीची। अपने मिठास, जायके और ग़िज़ाइयत के बायस हर उम्र के अफराद में यकसा मकबूल है। मार्केट्स में लीची की बहार आते ही खरीदारों का रश भी बढ़ जाता है। लीची का शुमार मौसम गर्मा के पसंदीदा फलों में होता है, जिसे जून से अगस्त तक बाजारों में खरीदा जाता है। इस लजीज फल में पानी की मिक़दार ज्यादा होती है। लीची जिस्म को डिहाइड्रेशन से बचाती है। फल फरोशों के मुताबिक लीची की मांग हर साल बढ़ रही है कि लीची न सिर्फ जायके बल्कि सेहतबख्श खसूसियात की वजह से भी पसंद करते हैं। गर्मी में लोग लीची को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। बच्चों को तो खास तौर पर बहुत पसंद होती है। लीची साल में एक दफा आती है, बहुत अच्छा फल है, ठीक है, सेहतमंद है। सिर्फ एक महीने ही रहती है तो मिनिमम 700-800 रुपए किलो पे आगे खत्म हो जाती है। लीची अच्छा फल है, मतलब ये 1 महीने के लिए आता है। इसका जायका अच्छा होता है, खाने में मतलब बेहतर होता है। लीची ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि इसके तिबी फवायद भी कम नहीं। अगर आपने अब तक लीची का जायका नहीं चखा तो मौसम की इस सौगात से जरूर लुत्फानंदोज हों। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42।